आज हम लोग लर्न करेंगे फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब किससे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब का टाइप्स कितनी हैं, और फाइनाइट वर्ब्स ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स सिस्टमेटिकली। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज वर्ब। वर्ब इज दैट वर्ड which tells about actions, or it tells about experience, or it tells about existence. So when a word tell all these things, so then that means we call it verb. For example, go या फिर write. Right, go या write in a sentence, I go to market, I write a letter. So here action is going in. Okay, experience, I feel your problem. Okay, so I feel, here experience. Okay, now existence. Mohan was a great man. Who was existence. Okay, so here go, feel, was, these words are called verb. Okay, now here verb is of two types. One is helping verb, another one is main verb. So today I am not talking about helping verb. Main verb stands for that, it stands alone in a sentence. Here you look at I feel, here Mohan was, here I go or I write a letter. Here these words, I write a letter or I feel, these words doesn't take any helping verb like an, is, are, or, was, were. So it can stand alone, sit alone. Okay, so we call it main verb. Now main verb are of two types. One is non-finite verbs, another one is finite verb. Today again I am not talking about non-finite verb. Let's talk about what is called finite verbs. Finite verbs. Our main topic is here finite verbs. What is called finite verb? Finite verbs are that main verbs which changes. Finite, I am talking about the definitions. Finite verb is the one which changes for tense, number of person or number of subject. Tense, number of persons as well as number of you can say that things. Okay, or you can say that subject. Okay, so that means it will change. That main verb will change according to tense. अगर tense होगा तो वो उसका look, शकल सूरत बदल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल पर्सन होगा, नंबर ऑफ पर्सन होगा तो उसका लुक बदल जाएगा. नंबर ऑफ थिंग्स होगा तो फिर जो है उसका लुक बदल जाएगा. आई मीन टू से नंबर ऑफ पर्सन से फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, फिर सेकेंड पर्सन है, ओके, फिर थर्ड पर्सन है. इसको कहा गया है. अच्छा, नंबर ऑफ थिंग्स यानी कि यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर या फिर प्लूरल. ओके, तो अगर थिंग्स का नंबर सिंगुलर होगा तो वर्ब चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम वांट को ले लेते हैं, WANT, वांट, इसको अगर प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वांट होगा. फिर इसका वांट्स भी होता है, क्यों होगा, आई एम टेलिंग यू ऑल. वांटेड हो सकता है, राइट. वांटिंग हो जाएगा, राइट. तो
one word, but now it changed into wants, it changed into wanted, it changed into wanting. ये सब शक्ल बदल जाएगा. तो कैसे होगा? For example, I want a toffee. Okay. Now she wants a toffee. Okay. Now Rahul wanted a toffee. Okay. She was wanting a toffee. Okay. So you see here, this sentence is in present tense. This sentence is also in present tense. But problem कहाँ है? और क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे I सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है, तो इसीलिए I के साथ want लगा. बट ये she is a person, थर्ड पर्सन है. मैंने बताया कि डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब्स जो भी है वो टेंस के अनुसार उसका शक्ल सूरत बदल जाएगा. नंबर ऑफ पर्सन व्यक्ति तीन टाइप के होते हैं. फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं. ठीक है. तो ये अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो उसका लुक अलग होगा, अगर थर्ड पर्सन होगा तो फिर यह भी क्या है, प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ एस और एस लगता है. राइट. फॉर एग्जांपल, शी गोज टू मार्केट. ओके. राइट. यू गो टू मार्केट. तो यहाँ पे यू के बाद यहाँ पे सेकेंड पर्सन भी जो है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं. प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ that means third person singular number takes goes. Okay. She was going, or she went to market. So you see here, she went, go का शक्ल बदल गया है went में. Okay. She went. Okay. If I write Rohit has gone to Kolkata. Rohit has gone to Kolkata. Okay. So you see, go का चेहरा बदल गया किसमें? gone में. क्यों? क्योंकि this sentence is in present perfect. Okay. And this sentence is in past indefinite. तो that means tense बदल गया तो फिर जो verb का शक्ल सूरत बदल जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? finite verb. Once more. go इसका एक लुक दिख रहा है, goes अलग लुक दिख रहा है, went अलग लुक दिख रहा है, गॉन अलग लुक दिख रहा है. क्यों? क्योंकि फाइनाइट वर्ब की डेफिनेशन में हमको मिल रहा है क्या है? फाइनाइट वर्ब वही मेन वर्ब होगी जब वो टेंस अगर प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में गया या फ्यूचर टेंस में गया या फिर और अदर टेंस होगा तो फिर उसका लुक, स्ट्रक्चर, शेप बदल जाएगा फिर. ओके. नंबर ऑफ पर्सन मीन्स मैंने कहा है कि फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन, उसका भी सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा. तो ओके. तो इसका जो है लुक बदल जाएगा. और नंबर ऑफ थिंग्स अगर सिंगुलर होगा तो फिर फॉर एग्जाम्पल birds, BIRDS, birds fly in the sky. If I write bird flies, FLIES, flies in the sky. तो यहाँ पे fly हुआ और यहाँ पे flies हो गया. हुआ क्यों हुआ? क्योंकि ये birds जो है प्लूरल हैं. नंबर ऑफ थिंग्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट. अगर ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब दे इस फॉर्म लेंगे. कौन सा फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म. बट अगर वर्ड सिंगुलर है, दैट मींस सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो फ्लाइज, FLIES. सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब. पॉइंट क्लियर? इसका एक शॉर्ट डेफिनेशन हम आपको बता दे. तो दैट मीन्स ये जो फॉर्मूला दैट मीन्स टेंस, नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ थिंग्स के बाद भी अगर इसका शक्ल सूरत नहीं चेंज होता है तो उसको नॉन फाइनाइट कहते हैं. ओके. नाउ आ जाए. आज आपको नॉन फाइनाइट नहीं बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं क्या है? फाइनाइट वर्ब्स. तो फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन दिया गया. आ जाओ आपको समझाते हैं कि डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट वर्ब्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स. हियर इन दिस फिगर आई हैव शोन यू that finite verbs are of two types. One is
टेल विथ मी, वन इज intransitive, another one is transitive. Okay, simple definition है, that means the transitive verbs means that mean word. Transitive verbs takes an object to clarify sentence. Okay, और intransitive not take object, तो इसको कहेंगे हैं दैट मींस ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. आइए आपको समझाते हैं. ट्रांजिटिव का एक डेफिनेशन लेते हैं, दैट मींस आई टीच यू या फिर आई टीच यू. सो यहाँ पे टीच के बाद अगर आप यू नहीं लगाते हैं तो फिर क्या होगा, ये सेंटेंस अधूरा है, तो यू लगाना मस्ट है, तभी जाके ये टीच कंप्लीट सेंस देने वाला है. राइट. सो तो टीच गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब्स. बट यहाँ पे इंट्रांजिटिव अगर कहेंगे तो दैट मींस बर्ड्स फ्लाई. तो बर्ड्स यहाँ पे देखो, ये फ्लाई यूज होने के बाद यहाँ पे कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब ये हो गए इंट्रांजिटिव वर्ब्स. चिल्ड्रन लव, चिल्ड्रन हंसते हैं. ठीक है, तो हंसते हैं. बर्ड्स उड़ते हैं. राइट. तो ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब क्यों है? इंट्रांजिटिव वर्ब इसीलिए है कि इस सेंटेंस दैट मींस इस वर्ब के आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. देयर इज नो ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने हम? एक छोटा सा सवाल है, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने? ऑब्जेक्ट को पहचानने की एक ही उपाय है, जब मेन वर्ब आप यूज करिएगा तो वहां पे क्वेश्चन अराइज होगा, व्हाट या हु या हुम. तो अगर ये सवाल उठाता है बेटा, व्हाट या हुम या फिर हु, तो ये इसकी पहचान है किसकी? ऑब्जेक्ट की. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. पर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है. चिल्ड्रन लव्स, ना हुम या व्हाट या हु, ये सब सवाल नहीं उठ रहा है. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब है दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू क्लैरिफाई सेंस. यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का और एक आइडेंटिफिकेशन है. क्या है आइडेंटिफिकेशन? इट विल रेज क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन रेज करता है? व्हाट, हु और हुम. अगर ये क्वेश्चन रेज करे तो उस वर्ब को आप ये कहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब है, और वर्ब अगर ये क्वेश्चन अराइज करे तो आप उसको आंख बंद करके बोल दीजिए क्या? ट्रांजिटिव वर्ब. ओके. और अगर ये क्वेश्चन रेज नहीं करे तो फिर इसको कहिए आप ये पूछोगे कि सर, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई. करेक्ट. अब सर ये तो नाउन है. सॉरी माय डियर, नाउन तो है, मगर ये इन दिस सेंटेंस इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस है. एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये नाउन यहाँ पे नहीं है. इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके. सो दिस वे वी आर knowing what? The difference between transitive verb and intransitive verbs. Okay. Now I am telling you that transitive verb किसका पार्ट है? ट्रांजिटिव वर्ब फाइनाइट वर्ब का पार्ट है. राइट. ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दो पार्ट है. किसका? फाइनाइट वर्ब का. आ जाइए. तो फाइनाइट वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब कभी कभी डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल, ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स डबल ऑब्जेक्ट. ओके. इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम बताएंगे आपको. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके. तो इट टेक्स डबल ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, रोहित teaches me maths. Okay. Sheeta offered me
a cup of coffee. तो ओके, लुक एट हियर, मी ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट की पहचान मैंने बताया था, या तो फिर हु होगा या हुम होगा या व्हाट होगा. तो रोहित टीचेस किसको? मी. हुम? मी. या व्हाट? मैथ्स. तो यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट हैं, राइट? अच्छा, शी ऑफर्ड मी, किसको ऑफर किए? किसको ऑफर किए? मी को. ओके, क्या ऑफर किए? व्हाट? ए कप ऑफ कॉफी. यहाँ पे और एक चीज हम आपको बताएंगे कि इसको हम घुमा भी सकते हैं. कैसे घुमा सकते हैं? अगर हम हटा दिए, हाँ, रोहित टीचेस मैथ्स टू मी हो जाएगा यहाँ पे, टू मी. तो ये भी हो सकता है, राइट? और यहाँ पे शी ऑफर्ड मी ए कप ऑफ कॉफी. तो यहाँ पे ये भी बदल सकते हैं आप, शी ऑफर्ड ए कप ऑफ कॉफी टू मी, राइट? आइए आपको बताते हैं. ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, एक है डायरेक्ट है और एक है डायरेक्ट है और एक है इनडायरेक्ट है. किससे कहते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है, नॉन लिविंग है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है, लिविंग बीइंग्स हैं. आइए, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जो लिविंग बीइंग होगा उसको इनडायरेक्ट कहते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो नॉन लिविंग होगा. आइए इस सेंटेंस में, ताकि आप, रोहित टीचेस मैथ्स टू मी. तो मैथ्स क्या है? नॉन लिविंग हो गया, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. टू मी यहाँ पे क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट है. दैट मीन्स ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. वंस मोर, शी ऑफर्ड मी, तो ऑफर्ड मी क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, एंड नाउ कप ऑफ कॉफी क्या हो गया? ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स डबल ऑब्जेक्ट. एग्जांपल क्लियर? वन टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अनदर वन मे बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आइए, समटाइम्स ये ट्रांजिटिव वर्ब समटाइम्स क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट तो लेते हैं, बट ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी वो क्या नहीं कर पाते हैं? सेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं. उसको कहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस. लुक, ट्रांजिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस, इसको इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस कहा जाता है. ओके, एक पॉइंट है, दैट मींस ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे कि एक ट्रांजिटिव वर्ब डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं, वैसे एक ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा भी है जो कि एक ऑब्जेक्ट लेने के बाद भी वो सेंस क्लियर नहीं दे पाता है. ओके, तब उसके साथ या तो नाउन लेना पड़ता है, कंप्लीमेंट लेना पड़ता है, एडजेक्टिव लेना पड़ता है, तो लेना जरूरी हो जाता है. फिर उसको कहते हैं कि इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस. एक एग्जांपल ले लीजिए आप. फॉर एग्जांपल, I made him. Look, I made him. Look, here in this sentence, I made him. मैंने उनको बनाया था. क्या बनाया था? कैप्टन. लुक, अगर ये जब तक कैप्टन वर्ड आप नहीं लीजिएगा तब तक क्या होगा? ये सेंस कंप्लीट ही नहीं होगा. I made him, यानी कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? कांट गिव. ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कैसे ट्रांजिटिव वर्ब है? रोहित मेड साइकिल. चलो, रोहित मेड साइकिल. ये साइकिल कौन बनाया? साइकिल कौन तैयार किया? रोहित. ओके, तो मेड हो गया यहाँ पे, क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब्स. बट इन दिस सेंटेंस ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? सेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है. इन दिस सेंटेंस ये नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस. और एक एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है. I saw her smiling.
आई सॉ हर स्माइलिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए आई सॉ हर, मैंने उनको देखा, ठीक है, ये सेंटेंस तो कंप्लीट है, मैंने उनको देखा, लेकिन इस हाल में क्या करते हुए। ओके, आई और पुलिस फाउंड हिम, पुलिस FOUND फाउंड हिम क्या, GUILTY। लुक, पुलिस फाउंड हिम, ठीक है, पुलिस फाउंड के बाद भी जो है कुछ सेंस अधूरा लग रहा है, तो यहाँ पे पुलिस फाउंड हिम गिल्टी। तो ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट अगर नहीं दिया जाएगा तो ये सेंस, ये ट्रांजिटिव वर्ब सॉ, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहीं अधूरा रह जा रहा है। तो इस सेंस में हम लोग इसको क्या कहते हैं, इस ट्रांजिटिव वर्ब को इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस कहते हैं। ओके, नाउ शी ट्रेम्बल्ड विथ let's leave it. Okay, now I'm taking you to that, there are some intransitive verbs can work as, there are some intransitive verbs can work as transitive. Intransitive verb का definition क्या देखें आप, intransitive का बात में देखें आप की definition है, it doesn't take an object. Okay, it doesn't take an object, but आइए some intransitive verbs like birds fly in the sky, ठीक है, तो birds fly यहाँ पे कोई सवाल नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, ये क्या हो गया आपका, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया। बट अगर उड़ाना काम अगर कोई बच्चा करे तो, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड और ए चाइल्ड flies sight in the sky. Wow, क्या great example. The child flies, क्या उड़ाता है, The child flies, क्या उड़ाता है, A kite. Okay, ये देखें, ये यहां पे हम एग्जाम्पल लेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब, और यहां पे लेंगे हम ट्रांजिटिव वर्ब्स, उसी को हम ट्रांजिटिव में कर देंगे, ट्रांजिटिव में कर देंगे हम, कैसे, इंट्रांजिटिव, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, बट यहां पे आई फ्लाई काइट, आई फ्लाई काइट इन द स्काई। तो लुक एट बर्ड्स फ्लाई। ओके, फिर यहां पे द बेल रिंग्स, द बेल सब्जेक्ट रिंग्स, ये क्या हो गया, बेल बजती है, ठीक है, बट यहां पे द पियोन रिंग्स द बेल, रिंग्स बेल इन द स्कूल, SCHOOL स्कूल। तो पियोन रिंग्स, यहाँ पे इसको रिंग्स को हम क्या कह रहे हैं, रिंग्स को हम कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब, कैसे, पियोन बजाता है क्या, व्हाट, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन की ट्रांजिटिव वर्ब वही मेन वर्ब होगी जब एक क्वेश्चन, दैट मींस वो जब क्वेश्चन अराइज करता है क्या या किसको या फिर कौन, तब हुआ। द पियोन रिंग्स, क्या बजाता है, बेल इन द स्कूल। पर इस सेंटेंस में द बेल रिंग्स, बेल बजती है, राइट, बेल बजती है, राइट, तो यहाँ पे क्या है, कोई सवाल ही नहीं है, बेल बजती है, सबको मालूम है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है ना। आ जाओ फिर, द ट्रेन stops at station. Okay, the train stops at stations. The train stops at stations. But if I say that driver stops the bus या फिर stops the train. बट यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा,
ट्रेन को चलाने वाले को ड्राइवर नहीं कहा जाता, पायलट कहा जाता है। बट आपको समझाने के लिए मैंने बताया ड्राइवर स्टॉप्स, ड्राइवर रुकता है। क्या रुकता है? बस चलाते वक्त रुकते हैं, ठीक है। और ट्रेन स्टॉप्स, ट्रेन रुकती है। ट्रेन रुकती है कहां पर? एट स्टेशन। तो यहाँ पे स्टॉप्स जो है इन दिस सेंटेंस, ये स्टॉप्स इंट्रांजिटिव, बट हियर इन दिस सेंटेंस ये स्टॉप्स क्या है? क्या है वो? ट्रांजिटिव है। ओके, आ जाइए। ही स्पीक्स, आइए, स्पीक्स फ्रैंकली। ओके, और यही स्पीक्स को अगर कहेंगे मोहन स्पीक्स द ट्रूथ, मोहन स्पीक्स द ट्रूथ। मोहन स्पीक्स क्या? मोहन स्पीक्स क्या? तो मोहन स्पीक्स द ट्रूथ, जो सच है वही बोलता है, राइट। बट यहां पे ही स्पीक्स, मोहन स्पीक्स, यहां पे मोहन कहता है और यहां पे ही स्पीक्स, वो कहता है, वो कहता है क्या चीज, ये नहीं पूछ रहा है। कैसे हो जाएगा ये? तो ही स्पीक्स फ्रैंकली, तो यहां पे आपका जो है ये इंट्रांजिटिव है। यहां पे ही स्पीक्स किसको नहीं आ रहा है? स्पीक के साथ ये सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। तो दिस वे दैट वी शुड नो, ये जो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है। और कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब है जैसे कि स्लीप, लव, तो ये वर्ड को भी आप ट्रांजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपके पास फ्रेश माइंड होना चाहिए, कोई बात नहीं। हाँ, सो वर्ब का डेफिनेशन क्या देखे हैं? वर्ब दो टाइप के होते हैं, क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। मेन वर्ब में दो टाइप होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब और एक है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन में, मैंने देखा टेंस। फाइनाइट वर्ब वो मेन वर्ब है जो टेंस, नंबर ऑफ पर्सन्स पे बदल जाता है, राइट। नंबर ऑफ पर्सन्स और सब्जेक्ट ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे बदल जाता है, राइट। और फाइनाइट वर्ब अब फिर दो टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर बिफोर यू। आई होप you are able enough to understand. By the way, if you feel problems, then I will make you understand. Do write comments, please. Thank you.